Welcome to online class once again. Yesterday we have studied about the GDP and its welfare, the last topic of national income and its related aggregate. So in that macro part we are having only one unit left. So we are going to start our Indian economy, in which we haven't started even a single lesson. So today we are having the first lesson of Indian economy on the eve of independence. This is the name of the lesson. So let us start with Indian economy with first lesson. Let us start with introduction of unit. So according to the CBSE syllabus, a brief introduction of the state of the Indian economy on the eve of independence is we have to study common goals of 5-year plan, main features, problem, policies of agriculture, and institutional aspects of new agriculture strategy, etc., industries licensing, etc., and foreign trade. And next we need to study economic reforms since 1991, features and appreciations of liberalization, globalization, privatization, LPG, that you have also studied in BS business studies, concept of demonetization and GST. But uh, this is our sixth unit. Overall we are having the units, overall we are having 8 units, and macroeconomics plus Indian economics both are having 8 units. So we are studying the sixth unit. So our chapters are Indian economy on the eve of independence is our first chapter, and second chapter Indian economy 1950 to 1990, and chapter 3 liberalization, privatization and globalization. So first of all we need to start the first chapter. Let us start the chapter. Our chapter 1 का फर्स्ट टॉपिक है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश रूल है. इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल्स के आने से पहले भारत की इकनॉमी एक इंडिपेंडेंट इकनॉमी थी. Agriculture was the main source of livelihood for the most people, yet the country's economy was also characterized by various kinds of manufacturing activities. हालांकि ब्रिटिश रूल के आने से पहले एग्रीकल्चर यहाँ का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हुआ करता था, जीवन यापन का मुख्य साधन हुआ करता था, लेकिन फिर भी कई तरह की और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी. उन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में क्या था? इंडिया वॉज वेल नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. इंडिया को लोग उसकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए जानते थे. इंडिया वॉज वेल नॉन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. इट मीन्स कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स का यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी. मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन वर्क, मेटल वर्क और प्रीशियस स्टोन वर्क यानी जड़ाऊ का काम किया जाता था. दीज प्रोडक्ट्स इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप. अब वेल नॉन ऑफ हैंडीक्राफ्ट होने के पीछे भारत के दो रीज़न थे. पहला तो यहाँ पर जो सिल्क या कॉटन का जो मटेरियल यूज़ किया जाता था उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी और उम्दा हुआ करती थी. सेकंड, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप्स. जो पर्सन ये काम करते थे वो बहुत ही अपने काम में निपुण हुआ करते थे, हाई स्टैंडर्ड हुआ करते थे. नेक्स्ट, focus of the economic policies pursued by the colonial government in India. The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interact of their home country than with the development of the Indian economy. It means focus of the economic policies pursued by the colonial government in India. अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी उस पर ब्रिटिश रूल का अधिकार हो गया था.
तो ब्रिटिश रूल ने उसको प्रोटेक्शन और प्रमोशन देने के लिए इकोनॉमिक इंटरेक्ट किया होम कंट्री के साथ। इट मीन्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इट मीन्स ब्रिटिश रूल जब यहाँ पर आया तो उसने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन और प्रमोशन दिया, लेकिन उसका प्रोडक्ट केवल उसकी खुद के कंट्री में जाता था, यानी इंग्लैंड जाता था, लेकिन उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। लेट्स सी इट्स नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज़ ऑन इंडियन इकोनॉमी। इट मीन्स ब्रिटिश रूल के आने के बाद उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को फ्लॉरिश करने का कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने जो भी प्रोटेक्शन और प्रमोशन किया अपनी होम कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में किया। उन्होंने क्या काम किए, उन कामों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने भारत की इकोनॉमी के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। जहाँ पर पहले भारत हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्टमैनशिप में इम्प्रूव्ड था, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब भारत सप्लायर बन गया था रॉ मटेरियल का। इट मीन्स भारत से सप्लाई किया जाने वाला रॉ मटेरियल विदेशों में, इट मीन्स ब्रिटिश कंट्रीज़ में यानी इंग्लैंड में काम आता था, और वहाँ उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार की जाती थी, और जिन तैयार गुड्स को भारत में बेचा जाता था। इट मीन्स उन्होंने भारत को अपने तैयार माल के लिए मार्केट के रूप में काम में लिया, और भारत के कच्चे माल को यहाँ से ले जाया करते थे। नेक्स्ट, सेकेंड, कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटैम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से भारत के लोगों का पर कैपिटल इनकम बढ़ाया जाए, नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाए। सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड द इंडियाज़ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर दादा भाई नारोजी, विलियम्स डिग्बे, फिंडले शेरेंस, V.K.R.V. राव एंड R.C. देसाई। उस समय जिन्होंने कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कि भारत की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया, उनमें मुख्य नाम दादा भाई नारोजी, विलियम्स डिग्बे और फिंडले शेरेंस, V.K.R.V. राव और R.C. देसाई मेन पर्सन्स थे। बट देयर अटैम्प्ट टू मेजर सच इनकम्स यील्डेड कॉन्फ्लिक्टिंग। लेकिन उनका इस तरह से मेज़र करना एक तरह का विवाद बन गया था। It was V.K.R.W. Rao whose estimates during the colonial period was considered very significant. केवल मिस्टर राव ही जो थे वो एक ऐसे पर्सन थे जिनका नेशनल इनकम का एस्टिमेट को बहुत ही सिग्निफिकेंट रूप में माना गया कॉलोनियल पीरियड के द्वारा। However, most studies did find that the country's growth rate of aggregate real GDP during the first half of the 20th century was only less than 2% per year. लेकिन most studies ये बताती है कि उस समय का रियल GDP जो था वो 2% कम था, एंड पर कैपिटल रियल GDP वॉज अबाउट 0.5% पर ईयर। और जो पर कैपिटल रियल GDP था दैट वाज ओनली 0.5% पर ईयर। You need to note down all the datas related to the Indian economy, in which you need to make the notes. On the back side of the notes copy, you need to write all the important dates and datas so that you may be able to revise these datas during the in the exam time.